সুশান্ত রাজপুত তার মৃত্যু রহস্য, তার আত্মা কিন্তু কথা বলছে আজ। আরও অন্যান্য অনেক তথ্য। আমরা দেখাচ্ছি 24 ঘন্টা লাইভে। হেডফোন লাগিয়ে শুনুন। এই মুহূর্তে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু নিয়ে গোটা দেশ তো বটেই, এমনকি বিদেশে হলিউডও উত্তাল হয়ে উঠেছে। এই বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষ দুই ভাগ হয়ে গেছে সারা দেশে। এক পক্ষ বলছেন যে মানসিক অবসাদে সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মহত্যা করেছেন, আর আরেকটি দল তারা একটা জনমত গড়তে চাইছে যে সুশান্ত সিংকে কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই নিয়ে চলছে পুলিশি তদন্ত। একদল বলছেন সিবিআই তদন্ত চাই, কিন্তু এর আসল কি হয়ে ঘটেছিল সেটা আমরা কেউই জানি না। আর এই নিয়ে, এই প্রশ্ন নিয়ে যে সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মহত্যা করেছিলেন না খুন হয়েছিলেন, এই নিয়ে আমাদের আজকের বিশেষ প্রতিবেদন। পরলোক থেকে সুশান্ত বার্তা দিলেন, ওরা আমায় খুন করেছে। রাজপুতের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তিনি নিহত হয়েছেন, তিনি আত্মহত্যা করেননি। কি খুব আশ্চর্য লাগছে না? তাহলে আসুন ভানগড় দুর্গের রহস্য দিয়ে শুরু করা যাক আজকের এই প্যারানরমাল প্রতিবেদন। हैप्पी बर्थडे टू माय सुपरस्टार रॉकस्टार। मैं आपसे भी थोड़ा प्यार देता हूं। लव यू भाई। अल्लाह ब्लेस यू। ही इज एक नंबर मान। আমি আনন্দ মুখোপাধ্যায়, আর আপনারা দেখছেন 24 ঘন্টা লাইভ। এই বিশেষ প্রতিবেদনটি দেখতে গেলে আপনাদের আমার কিছু অনুরোধ মেনে চলতে হবে। প্রথমেই বলে রাখি যে এই প্রতিবেদনের বেশিরভাগ ছবি গভীর রাত্রে তোলা, এবং যেহেতু এগুলি বেশিরভাগ কথোপকথনই অশরীরী আত্মাদের সঙ্গে করতে হয়েছে, সেখানে দুপক্ষই অনেক আস্তে কথা বলেছেন, অত্যন্ত মৃদু স্বরে কথা হয়েছে। তাই আমার অনুরোধ, অত্যন্ত একাগ্র চিত্রে কানে হেডফোন লাগিয়ে মনঃসংযোগ করে কথাগুলি শুনুন। সমস্ত ব্যাপারটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, ইতিহাস আমার টানে। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও আমি কিন্তু ইতিহাসের অলিগলিতে পদচারণা করতে ভালোবাসি, কারণ ইতিহাস অনেক সময় মূর্ত হয়ে ওঠে আর অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। তাই আমার বই ভানগড় দুর্গের রহস্য, এই বইটির লেখার আগে, বই লেখার রসদের টানে আমি পৌঁছে গেছিলাম রাজস্থানের ভানগড় দুর্গে। বলা হয় এই দুর্গ নাকি পৃথিবীর মোস্ট হন্টেড ফোর্ট, মানে বিশ্বের ভয়ঙ্করতম হানাবাড়ি। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর আমি দিল্লিতে আসি এবং সেখানে প্যারানরমাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার প্রধান গৌরব তেওয়ারির সাথে দেখা করি দুয়ারকায়। গৌরব তেওয়ারি একেবারে তরুণ তরতাজা এক যুবক, বছর 32 থেকে 35 বছরের মধ্যে বয়স, কিন্তু এই প্যারানরমাল সায়েন্স নিয়ে তিনি অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিও পেয়েছেন। তাই আমার উদ্দেশ্য ছিল যে অর্গ মানে আত্মা, যাকে ইংরেজিতে অর্গ বলা হয়, তাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে এবং তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের পথটা একটু ভালো বিশদভাবে জানতে আমি সেখানে পৌঁছে যাই, কারণ তিনিও গিয়েছিলেন ভানগড় দুর্গে। It was all dark at Bhangar. The ambience was very scary. The wild animals all around us were creating spooky sounds. So it was the right time for us to start investigation. We started investigating using our K2 meter and spirit boxes. या कोई भी एक शब्द बोले इस रेडियो के सहारे। क्या रानी रत्नावती यहाँ रहती थी?
क्या तांत्रिक सिंगिया आसपास है हमारे? क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप? जरा फिर से बताइए। कुछ कहा आपने? এই বিষয়ে গভীরভাবে জানতে অর্বের সংস্পর্শে আসার রাস্তাটুকু খুঁজতে আমরা গিয়েছিলাম গৌরবের কাছে, আমি গিয়েছিলাম এবং বলতে দ্বিধা নেই, তিনি আমাকে অনেক কিছু রাস্তা দেখিয়েছিলেন। যাই হোক, আমার ভানগড় দুর্গের রহস্য বইটির প্রকাশ আসন্ন। আমাদের আজকের উদ্দেশ্য কিন্তু ভানগড় নয়। আজ আমরা বিচরণ করব মৃত্যুর সীমানা পেরিয়ে ওপারে, চেষ্টা করব সুশান্ত সিং রাজপুতের কাছ থেকে জানতে তার মৃত্যুর আসল রহস্যটা কি। আমি আবার আপনাদের বলে রাখি, এইসব প্যারানর্মাল ব্যাপারগুলি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত হলেও কিন্তু এর কোনো আইনি স্বীকৃতি নেই। তাই এগুলিকে কোনোভাবেই আইনের চাদরে মোড়া যাবে না, কারণ আইন স্বীকৃতি দেয়নি। 2016 সালের 7ই জুলাই গৌরব তেওয়ারি নিজের বাড়িতে দিন দুপুরে অস্বাভাবিক মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তিনি মারা যান। সেই মামলার চার্জশিট আজও দিল্লি পুলিশ দিয়ে উঠতে পারেনি, কারণ কোনো অপার্থিব কোনো কিছুকে প্রমাণের আওতায় আনা যাবে না। যাই হোক, গৌরবের মৃত্যুর পর কয়েকদিন পরে গৌরবের জন্মদিন ছিল গৌরব তেওয়ারি। সেখানে তার অফিসের এক ইন্ডিয়ান প্যারানর্মাল সোসাইটির অফিসের এক সহকর্মী রাজ ওয়াকার গৌরবকে তার জন্মদিনে আহ্বান করে তাদের অফিসে। জন্মদিনে ডেকে আনেন। সেই কথোপকথনে একটি ঝলক খালি আমরা আপনাদের দেখাবো, সামান্য একটু ঝলক দেখুন সেদিন গৌরব তেওয়ারি কি জানিয়েছিলেন। मेरे मोबाइल पे कोई, मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोशिश करें तो कुछ ऑर्ब जैसी चीज़ कुछ दिखेगी। दिखी? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तब से जैसे उस टाइम में भी रिकॉर्ड किया था ना, हाँ तो वहाँ से एक पर्टिकुलर एक एरिया से बार बार निकल रहा था, हाँ हाँ, उस पे होगा। ये फिर गया। लाइट ऑफ रहेगा ना ये वाला, तो और अच्छा दिखेगा। लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये ऑन हो जाता है ना फ्लैश ये उसका। हाँ, ये फिर गया। नहीं, वो लाइट हम बोल रहे हैं, ऑफ कर दूँ उसको? कर दो। फोटो उसका तो ले लिया बहुत, अब छोड़ो। उससे भी ऐसे उस कैमरे से आना नहीं है कुछ भी। बहुत अच्छी बात है सर कि आप जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये PIR लाइट के सामने कुछ वाइट सा शैडो टाइप है, ये क्या है सर? अभी एक और ऑर्ब दिखा मुझे। मेरे PIR लाइट के सामने एक, उसके आसपास कुछ शैडो टाइप मुझे दिख रहा है। यस है ना। हाँ, इसे मैं लेंस फ्लेयर समझूं? यस, लेंस फ्लेयर है। इसका मतलब है कि इस PIR लाइट को मैं हटाऊंगा चेंज हो जाएगा। तो ये हट जाएगा। हाँ ठीक है, सही। लेंस फ्लेयर, बोला भी लेंस फ्लेयर। थैंक यू सर। और अभी भी आप यहाँ हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू आउट। मुझे कोई कन्विंसिंग सा एक इंडिकेशन दे दीजिए। अगर आप इसे चाहेंगे तो हम अपने इस कम्युनिकेशन को तो पब्लिक कर सकते हैं। दिखा सर? ठीक, बिल्कुल कैमरे के पास। और अभी आपने बहुत अच्छी चीज़, एक इंडिकेशन दी मुझे, शायद वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो। तो
हमारे जब भी हम सर इस फील्ड से रिलेटेड, मैं सिद्धार्थ, आईपीएस के या कुछ और जो इंटरेस्टेड लोग हैं दिल से, अगर वो कहीं जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमें अभी भी गाइड करेंगे। क्योंकि आपको पता है सर, दो तरह के लोग हैं और उन दोनों तरह के लोगों से आपको एलर्जी थी। एक तो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रैशनलिस्ट कहते हैं और इन बातों को नहीं मानते, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका की थीम आप समझ सकते हो कि जिस चीज़ के आप अगेंस्ट थे, लोगों को डराना। जिस तरीके से आप इस फील्ड को प्रेजेंट करते थे, इनफैक्ट सर मैं भी वही चाहता हूँ, मैं भी वही सोचता हूँ। हाँ सर, तो अब मैं वापस आ गया हूँ एक और इक्विपमेंट को लेकर के, और इनफैक्ट मैं सबसे ज़्यादा उस पर बिलीव करता हूँ। ये डिजिटल EMF मीटर है। तो अभी आप जो कोशिश कर रहे थे करने का कम्युनिकेशन के दौरान, तो इसमें थ्रू आउट EMF चेंज होगा, और उसको शायद मैं देख भी पा रहा हूँ। K2 से तो मुझे बस इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ EMF में चेंज हो रहा है, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है। আপনারা দেখলেন যে গৌরব তেওয়ারিকে আনলেন রাজ ওয়াকার। আমরা এই ভিডিওটি পুরো দেখাতে পাচ্ছি না, দেখালাম না, তার কারণ আমাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছে তাহলে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। আসুন আমরা সরাসরি চলে আসি সুশান্ত সিংহের রাজপুতের আত্মার কাছে। বলে রাখি, এবারও নিরীক্ষার প্রধান হোতা কিন্তু সেই রাজ ওয়াকার। আসুন দেখছি, আমরা দেখাচ্ছি আপনাকে কিভাবে এবং কি করে সুশান্ত রাজপুতকে আমরা আনতে পারলাম আমাদের টেবিলে এবং তার বক্তব্য শুনলাম। हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से कमिट किया था कि मैं सुशांत को लेकर के कुछ कम्युनिकेशन करने वाला हूँ। एक्चुअली जिस तरीके से कम्युनिकेशन होती है वो बिल्कुल प्रोसीजर अलग है। मैं मानता हूँ कि मैं उससे ही कम्युनिकेशन कर सकता हूँ जिसको मैं कभी जानता था या वो मुझे जानते थे। मैं ये मानता हूँ कि कम्युनिकेशन ऐसी जगह पे कर सकता हूँ जहाँ पे कुछ कभी हुआ है ऐसा, और मुझे उस जगह की एक्सेस मिली हो, मुझे वहाँ पे उस प्रॉपर्टी में जाने का किसी तरह का परमिशन मिला हो या मुझे मौका मिला हो, तब मैं कर सकता हूँ। ये बहुत टफ है जो आज मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ जस्ट मेरा एक असम्पशन है कि मैं बहुत सारे एंटिटीज़ से, मुझे पता है मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे एंटिटीज़ मुझसे जुड़े हुए हैं। और अगर मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करता हूँ, जिसकी सुशांत भी बात करते थे, मेटाफिजिक्स और क्वांटम फील्ड को लेके बहुत ज़्यादा बात करते थे वो, अगर इस बात को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको शायद आप मान जाएंगे कि आप दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। उनसे आज मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ क्या कोई मौजूद है जो मुझे सुशांत से कनेक्ट करा सकते हैं? कोई भी यहाँ पे? क्योंकि देखिए, मुझे लगता है सुशांत को मैं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है लाइक उनकी किताब या उनकी कोई फेवरेट पेन या उनका कोई फेवरेट शर्ट, कुछ भी जिसमें उनका एनर्जी सिग्नेचर हो और उसको यूज़ करके मैं उनसे कनेक्ट कर पाता। वो मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है। मैं उनको जानता नहीं था, उनके परिवार के कोई लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कोई यहाँ है जो मुझे उनसे कनेक्ट करा सकता है? अगर करा सकता है तो मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे सकता है। अभी ये K2 पे मैं चौथी लाइट देख रहा हूँ।
ठीक है, अगर कोई है तो मैं आपसे कहूँगा आप बने रहिएगा मेरे साथ। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ आज। जिस चीज़ को मैं नहीं समझ पाऊंगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि पता है मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि मैं कुछ भी हुआ था सुशांत के साथ उसको मैं डिकोड कर लूं। शायद आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप डिकोड कर लें। क्या मैं गलत हूं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये ईएमएफ के चेंजेस तो दिख रहे हैं मेरे बोलने पे। कोई ऐसा कर सकता है तो मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे। इशारा किसकी तरफ है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? चलिए, अभी मुझे इंडिकेशन ये मिल रहा है कि यहाँ पे जो भी है वो विलिंग है कि हाँ मेरी बातों का जवाब देंगे वो, और ऑनेस्टली जवाब देंगे। तो मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूं। मैंने कुछ क्वेश्चन के सेट्स बनाए हैं सुशांत को लेकर के। ये देखिए, पता तो मुझे भी नहीं है वहां क्या हुआ था, पता किसी को नहीं है। शायद मुंबई पुलिस को भी ठीक से नहीं पता है वहां हुआ क्या था। पता तो सिर्फ उसको होगा जिसके साथ कुछ हुआ था, वो भी कुछ कुछ, या पता उसको होगा अगर किसी ने उसके साथ कुछ किया था। चलिए अब इसको हम स्लो में देखते हैं क्या हुआ था। स्क्रीन के बिल्कुल राइट साइड में देखिए एक लाइट, उसके बाद दूसरी लाइट यहाँ, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ। मेरे हाथ में एक पेपर है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन मैं लाइट अगर जला दूं ना तो ये इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे, इसलिए मुझे अंधेरे में ही करना पड़ेगा लाइटर का सहारा लेकर के। जो मेरे क्वेश्चंस है, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप में से कोई भी यहाँ पे सुशांत से मुझे कनेक्ट करा सकते हैं, या आप कनेक्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं, आप कर सकते हैं उनसे कनेक्ट। ये बस मैंने देखा लाइट को हिलते हुए जोर से, और कुछ टक से आवाज आया था। एनीवे, मतलब आप कनेक्टेड हैं, आप मानते हैं आप कनेक्टेड हैं सुशांत से, आप उसको कर सकते हो कनेक्ट। मैं इको को बंद कर दिया है मैंने। अब मुझे ये बताइए, अगर ये बहुत सब कुछ इंटेलिजेंट है, इतना वाकई में आप हैं, तो सुशांत भाई की एक सबसे फेमस मूवी आई थी, उस मूवी का पहला कैरेक्टर क्या था? टोनी। मुझे कुछ ऐसा लगा, अब पता नहीं, ये तो मैं वीडियो में देखूंगा। देखिए, अब जो क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं ना, ये बड़े ही सेंसिटिव और बड़े खतरनाक क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि सुशांत भाई, आप लोग बताओ, आप जो भी लोग हैं मेरे से कनेक्टेड इस टाइम,
मैं नहीं कह सकता ये सुशांत हैं या कौन है, जो भी कनेक्टेड है आप डिकोड करके बता सकते हो कि सुशांत भाई ने सुसाइड किया है या उनका मर्डर हुआ है। एम और एस, मर्डर। मुझे कुछ ऐसा लगा मर्डर सा सुनाई दिया था। वेरीफाई करूंगा इसको मैं वीडियो देख के। अगर सच में ये बात है तो क्या K2 पे जो मेरे सामने K2 है, 5th लाइट आ सकती है क्या उसमें? अगर इतना स्ट्रांग है, अगर सच में लग रहा है, आपको लग रहा है आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आज आप लोगों से, आज से नहीं 4-5 सालों से ऐसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मुझे पता है आपने मुझे कभी नहीं हार्म किया है। मुझे स्ट्रांग इंडिकेशन चाहिए। ठीक है, मैं दूसरे क्वेश्चंस पे आऊँ अब। ये जानना चाहता हूँ कि मैं ये जो कह रहा हूँ, अगर किसी ने कहा है सुशांत भाई को कि हाँ तुम्हारा करियर खत्म हो गया है, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है, तो क्या ये सही बात है? और जिसने करने की कोशिश की है, क्या उसका नाम आर से शुरू होता है? ये मैं वेरीफाई करूंगा। मुझे कुछ सुनाई दिया था, लगा तो था कि कुछ जो मैं सुनना चाह रहा था वो सुना है। तो ट्राईफील्ड मीटर भी मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मैं सही हूँ। अच्छा, हो मैं अब एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, और खतरनाक क्वेश्चन का आंसर भी खतरनाक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत भाई को बताया गया कि वो डिप्रेस्ड हैं, जिस घर में रहते थे वो हॉन्टेड है। हंस रहे हैं आप मतलब? अच्छा ठीक है, ये क्या आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए बात पे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत भाई को बताया गया कि वो डिप्रेस्ड हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इसको कम कीजिए, इसको कम कीजिए आप। ये जब कम होगा तभी मैं इससे आगे बात कर पाऊंगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत भाई की दवाई को चेंज किया गया है। क्या सुशांत भाई की दवाई को चेंज किया गया है? चौथी या पांचवी बत्ती जल सकती है इस पे? और ये इकोवॉक्स कॉम्पास भी मैंने रखा है और इक्विपमेंट भी है। बट दिक्कत ये है कि जब मैं इसका फ्लैश ऑन करूंगा ना, तो इक्विपमेंट्स पे जो लाइट्स आती है वो लाइट्स आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये अंधेरे में ही काम करता है। मैं सच में अगर किसी से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, या जितनी बातें मैंने की थी, मुझे क्या कोई और दिख सकता है खतरनाक सा बिल्कुल मेरे सामने आता हुआ? अगर सच में मेरे साथ कोई है, मुझे दिख रहा है। देखिए, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल है। तो जितनी बातें मैंने की, देखिए मुझे K2 में तो दिख रहा है लाइट, लेकिन फोन पे मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि फ्लैश ऑन है। चलिए मैं फ्लैश को ऑफ करता हूँ। YouTube पता है मेरे लिए क्या है? YouTube पता है मेरे लिए क्या है? मिशन को कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने अपने फ़ोन को चेक किया, तो मेरे फ़ोन में ये एक स्टिल इमेज आई थी।
जबकि मैं वीडियो बना रहा था फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन में फ्लैश होता है तो उससे चांसेस होते हैं कि कोई ऑर्ब दिख जाए, और वो तो दिखा भी था। और DSLR टेबल पर रखा था और ये सारे सपोर्टिंग इक्विपमेंट थे। तो इसमें मुझे ये शैडो सा कुछ दिखा है यहाँ, ये इसको और हम क्लियर करते हैं। इस पिक में आपको दिख जाएगा, इस फ्रेम में ये शैडो, ये हाथ, इसका मतलब इसका एक्सटेंशन यहाँ तक है, हाथ तो नहीं कह सकता, ये यहाँ से शुरू है फिर यहाँ तक है। ये मुझे लगा कहीं ये मेरा ही शैडो तो नहीं है, लेकिन ये फिर ये क्या है और ये क्या है, मतलब डिसएम्बॉडीड है टोटल ये। বন্ধুরা আপনারা দেখলেন তো, অর্ব মানে আত্মা, সুশান্তর আত্মা কিন্তু পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিল সুশান্ত সিং রাজপুত খুন হয়েছেন এবং তার ওষুধ পাল্টে দেওয়া হয়েছিল এবং 4 সম্ভাব্য হত্যাকারীর নামের আদ্যক্ষর তিনি জানিয়ে দিলেন। তিনি মানে ওই অর্ব, ওই আত্মা জানিয়ে দিল, বলল 4 হত্যাকারীর নামের আদ্যক্ষর হচ্ছে MRSK। আবারও বলি MRSK। বন্ধুরা, আমরা আজ আপনাদের যা দেখালাম তা একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল। যদিও বিজ্ঞান এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপস্থিতিকে মান্যতা দেয়। একটা আত্মা যখন আসে সে তার চারপাশে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে, সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এসেছে জানালেই বোঝা যায় যে আত্মা এসে পৌঁছেছে। তা এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দেয় বিজ্ঞান। কিন্তু তবুও আমাদের অপেক্ষা করতে হবে পুলিশি তদন্তের উপরে, এবং পুলিশি তদন্তের রিপোর্টকে মান্যতা দেবে আইন। আমরা কোনোভাবেই পুলিশি তদন্তকে প্রভাবিত করতে চাই না, তাই পুলিশ রিপোর্টের দিকে আমরা চেয়ে থাকবো। আমরা যখন পুলিশ রিপোর্ট কি বেরোবে এবং কোর্ট কি যা বলবে মহামান্য আদালত, আমরা সেটাকেই মান্যতা দেব। তাই পুলিশ রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের প্রতিবেদন আজকে এখানে শেষ। নমস্কার, জয় হিন্দ। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, হেথা নাই কো মৃত্যু নাই কো যারা। দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া